I welcome all of you in the VK Scholar Education Digital Learning class. In this video number 17, I will discuss with you multiple choice question in the subject of financial management. The paper is of December 2013, paper second, UGC NET JRF Commerce examination. Okay, so the first question is, which one of the following is not among the assumptions of Motiglani-Miller model? So approach, and the main feature of this approach is that it provides irrelevance of dividend to the value of the firm. इसका मतलब है कि dividend is irrelevant to the value of the firm. Whether a company is paying dividend or not, it has no impact on the value of the firm. Okay, the value of the firm has no relationship with paying the dividend or not paying the dividend. Okay, so this approach is irrelevant approach of dividend to the value of the firm. Okay, so कौन सा इसमें से assumptions नहीं है? Perfect capital market is a major assumption of approach. Equivalent risk class, absence of tax. So these three are the main assumptions, and unity for dividend payout ratio is not the assumptions of a Modigliani-Miller model. Okay, क्योंकि dividend payout ratio has no relationship with the value of the firm. Okay, तो इसका explanation देखिए कि under conditions of perfect capital markets, okay, rational investors, absence of tax, discrimination between dividend income and capital appreciation. Okay, इसका मतलब है कि डिविडेंड के ऊपर टैक्स रेट क्या है और कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स रेट क्या है. ओके, तो देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन टैक्स रेट ऑन डिविडेंड एंड टैक्स रेट ऑन कैपिटल एप्रिसिएशन. दोनों का टैक्स रेट एक जैसा ही है. गिवन द फर्म्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, investment decision of the firm is known in advance to the managers as well as investors of a company. So इसका जो dividend policy है may have no influence on the market price of a shares. Okay, so इसलिए dividend payout ratio उसका unity और non unity उसका कोई importance नहीं है. So this is not the assumptions of model. Okay, second is the most stable coverage ratio for deciding the debt capacity of a firm is. सो 4 रेशो दिए गए हैं आपको: इंटरेस्ट कवरेज रेशो, कैश फ्लो कवरेज रेशो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो और फिक्स्ड एसेट्स कवरेज रेशियो. ओके, तो सबसे पहले व्हाट आर कवरेज रेशियोज. सो कवरेज रेशियोज मेजर द फर्म्स एबिलिटी टू पे सर्टेन फिक्स्ड चार्जेस. ओके, तो फिक्स्ड चार्जेस, फिक्स्ड में आप दो तरीके से, फिक्स्ड ऑपरेटिंग चार्जेस लाइक सैलरी और फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन. ओके, तो ये हम कवरेज रेशो के थ्रू जो है फर्म की एबिलिटी को, फाइनेंशियल एबिलिटी को चेक करते हैं कि फर्म अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को आसानी से पे कर सकती है या नहीं कर सकती. ओके, तो इम्पोर्टेंट कवरेज रेशियोज आर इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज. Another name of interest coverage ratio is time interest earned ratio, dividend coverage ratio, total fixed charge coverage ratio, total cash flow coverage and debt service coverage ratio. Okay, the most stable coverage ratio for deciding the debt capacity of a firm is cash flow coverage ratio. Okay, क्योंकि बेसिकली एंटायर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ बेस्ड ऑन कैश फ्लो अप्रोच. तो इसलिए किसी भी फर्म की अगर हमने स्ट्रेंथ, कैपेबिलिटी और पावर, फाइनेंशियल पावर को चेक करना है ताकि एक कंपनी अपने एक्सटर्नल फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ को ईजिली, आसानी से पे कर सके, ओके, ईजिली पे कर सके, तो इसलिए हम उस फर्म की कैश पोजीशंस के ऊपर फोकस करेंगे. ओके, तो इसलिए the overall ability of a company to service outside liabilities is truly reflected in the total cash flow coverage ratio. Higher the cash flow coverage ratio,
better is the ability, because the firm liquidity positions will be very sound. Okay, next question is, which one of the following is most popular method for estimating cost of equity? So cost of equity is calculated or measured by the following approaches: dividend price approach, dividend price plus growth approach, and in this approach, growth in dividend at a constant rate or growth in dividend at a varying rate. Okay, earning price approach, कैपिटल एसेट प्राइसिंग अप्रोच और रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच. ओके, तो सबसे बेस्ट पॉपुलर मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कैपएम मॉडल गिवन, एंड दिस कैपएम मॉडल इज प्रपोज्ड बाय विलियम शार्पे. ओके, नेक्स्ट इज, which one of the following is not the internal factor affecting the weighted average cost of capital of a firm? Weighted average cost of capital is also known as overall cost of capital, combined cost of capital. Okay, so कौन सा फैक्टर जो है इंटरनल नहीं है? इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ ए फर्म, या इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, वो इंटरनल फैक्टर होता है. कैपिटल स्ट्रक्चर इज इंटरनल, डिविडेंड पॉलिसी ऑफ ए फर्म इज इंटरनल, मार्केट रिस्क प्रीमियम फॉर द फर्म इज एक्सटर्नल फैक्टर. और मार्केट रिस्क का मतलब होता है सिस्टमेटिक रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क, एंड मार्केट रिस्क इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ बीटा कोफिशिएंट. ओके, तो म्यूचुअल फंड्स में कि जब आप कोई विज्ञापन देखते हैं टीवी के ऊपर, तो उसमें क्या लिखा जाता है? म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क. ओके, तो मार्केट रिस्क इज एक्सटर्नल फैक्टर. नेक्स्ट इज, मोस्ट कॉमन अप्रोच फॉर एनालाइजिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्म इज. ओके, तो रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, कंपेरेटिव एनालिसिस एंड लीवरेज एनालिसिस. तो द मोस्ट कॉमन अप्रोच फॉर एनालाइजिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी इज कंपेरेटिव एनालिसिस. ओके, क्योंकि रेशियो एनालिसिस में क्या होता है कि हम एक कंपनी डिफरेंट कवरेज रेशो को कैलकुलेट करती है. ओके, जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशो, फिक्स्ड एसेट्स कवरेज रेशो. ओके, तो रेशो एनालिसिस एक फर्म स्पेसिफिक इंटरनल जो फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस काउंट है उसके ऊपर ये रेशोज बेस्ड रहते हैं. ओके, तो कैश फ्लो एनालिसिस, जिसका अनदर नेम जो है लिक्विडिटी एस्पेक्ट होता है, क्योंकि कैश फ्लो, अगर किसी फर्म का कैश पोजीशन साउंड है तो फर्म की लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग रहती है. ओके, तो फर्म आसानी से अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पे कर सकती है. ओके, कंपेरेटिव एनालिसिस, इसके अंदर एक तो होता है इंट्रा इंडस्ट्री एनालिसिस. ओके, और होता है इंटर इंडस्ट्री एनालिसिस. इंट्रा इंडस्ट्री एनालिसिस का मतलब है, सपोज हम ऑटो इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो टाटा मोटर्स लिमिटेड अपना जो कंपैरिजन है वो मारुति उद्योग लिमिटेड के साथ या महिंद्रा ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ अपना कंपैरिजन कर सकते हैं. और इंटर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कंपैरिजन हम मान लीजिए स्टील इंडस्ट्री के साथ कर सकते हैं, कंप्यूटर इंडस्ट्री के साथ कर सकते हैं. तो दिस इज़ द कंपेरेटिव एनालिसिस. एंड लिवरेज एनालिसिस, in this we calculate operating leverage, financial leverage and combined leverage. Okay, so there are various approaches to know the leverage used in the leverage analysis. जैसे आप एक बोल सकते हैं कि EBIT EPS एनालिसिस, EBIT EPS एंड EPS एनालिसिस. तो बेसिकली ये प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है. ओके, लिक्विडिटी एस्पेक्ट, ये दिस इज ए कैश फ्लो अप्रोच. ऑल राइट, तो द बेस्ट अप्रोच इज कंपेरेटिव एनालिसिस. ओके, so thank you all of you.